Christmas is a season of a great joy. It is a time to celebrate God's love for each one of us. It can be a time of healing and renewed strength. God sent His only begotten Son for each one of us. So let's be joyful this evening and let's celebrate His love for each one of us.
morning, everyone. सुप्रभात कलीसिया। And today we are meeting for Christmas. और हम क्रिसमस के लिए मिल रहे हैं। It's a joyous day, एक आनंद का दिन है happy day, और खुशी का दिन है, a day of hope, एक आशा का दिन है, a birth of our Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन है। So today's topic is Word became flesh. और शीर्षक आज का ये है कि वचन देदारी बना। And I have taken the text from Micah chapter 5 verse 2. और हमने मीका से वचन लिया है, मीका 5 उसका 2। So I'm going to read it in English. हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे। But you, Bethlehem Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be a ruler over Israel, whose origin are of old, from ancient times. हे बेथलेहम अप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरना अनादि काल से होता आया है। So here we see तो यहाँ पर हम देखते हैं a promised ruler from Bethlehem. एक वादा किया हुआ राजा। And we all know that Christ was born in Bethlehem. और हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बेथलेहम में जन्म लिया। But what I really want to stress is the B part of this verse. और जो मैं और भी गहरी रीति से बताना चाहता हूँ कि ये जो दूसरा भाग है इस वचन का, It says whose origins are from old, from ancient times. यहाँ पर लिखा है कि उसका निकलना प्राचीन काल से वरना अनादि काल से होता आया है। We Christians believe the Father, Son and the Holy Spirit. हम ख्रिस्ती लोग विश्वास करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। And I believe, yes, Christ in human form came 2000 years back. और मुझे यकीन है, विश्वास है कि प्रभु यीशु हजारों साल पहले आए थे। But the Father, Son and the Holy Spirit were always there from the beginning. और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा शुरुआत से वो थे। And this begotten Son is not the created Son. और जो परमेश्वर का पुत्र है वो बनाया गया पुत्र नहीं है। If he was created, then we cannot call him God. अगर उसको बनाया गया है, रचाया गया है, तो वो परमेश्वर नहीं हो But he was सकता है। always there from before. वो पहले से ही था। And coming to the New Testament, we all know this verse from John 1:1. और नया करार में हम आते हैं तो हम यूहन्ना 1:1 सबको जानकारी है। He says, "In the beginning was the Word, और इसमें लिखा है कि आदि में वचन था, and the Word was with God, और वचन परमेश्वर के साथ था, and the Word was God." और वचन परमेश्वर था। And verse 2 says, "He was with God in the beginning." और दूसरा अध्याय कहता है यही आदि में परमेश्वर के साथ था। It's true, many say Christianity just come 2000 years back. और बहुत जन कहते हैं कि 2000 साल पहले क्रिस्ती का ये धर्म आया था। In other words, they are trying to tell us that Christ, your Christianity just started, just 2000 years back, but we were much more before that. और हमको बताया गया है कि 2000 साल पहले तुम्हारे क्रिस्ती का धर्म आया था, लेकिन उसके पहले से ही वो हुआ था। There is one God, He is always there from the beginning. वो एक ही परमेश्वर जो शुरुआत से ही था। So here in chapter 1 verse 1 it says, "In the beginning was the Word." और यूहन्ना का 1:1 में शुरुआत में ही लिखा है आदि में वचन था। And when you go a little further in verse 14, और फिर हम 14वें आई में जाते हैं उसी अध्याय में। it says, "The Word became flesh and made His dwelling among us." और वचन देदारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई परिपूर्णता होकर हमारे बीच में डेरा डाला। The glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth.
और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर पिता के और इकलौता की महिमा। You know, in the book of Galatians, we read that God at the right time sent for us our Lord Jesus Christ. और गलतियों में लिखा है कि सही समय पर पिता ने अपने पुत्र को भेजा। In the fullness of time, it says. और कहता है कि समय का पूर्णता होने पर। Let's see what Paul has to say in the book of Colossians. हम देखेंगे कि पौलुस कोलोसियों में क्या कहता है। And we are going to read something from chapter 1, verse 15 onwards. और कोलोसियों का 1:15 से हम पढ़ेंगे। He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Firstborn means not the created one, but the unique one. वह तो अदृश्य परमेश्वर की प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौटा है। पहलौटा का मतलब है, सृष्टि का मतलब है पहले से ही था। He is the image of the invisible. What I'm trying to tell you that Father, Son, and the Holy Spirit, they're not three God, they're one God, and we call Jesus, yes, He is God. और अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक परमेश्वर है और प्रभु यीशु परमेश्वर है। Verse 16. और 16वां वचन में हम देखेंगे। By Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things were created by Him and for Him. 16वां आय में लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। Verse 17, He is before all things and in Him all things hold together. और 17वां आय में लिखा है, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर है। I'm going a little further to verse 19. और आगे मैं 19 में जाता हूँ। Amen. For God was pleased to have all His fullness dwell in Him. क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। Verse 20, and through Him to reconcile Himself all things. और 20वां आय में लिखा, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले। Whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की हो, उसके लहू के द्वारा शांति और मेल मिलाप करके। It's very true. In the fullness of time, Christ came on earth. और ये सच्ची बात है कि समय के पूर्णता होने पर प्रभु यीशु इस धरती पर आया। The Word became flesh for us. और वचन देदारी हमारे लिए हुआ। He came for a purpose. He fulfilled His purpose by shedding His blood on the cross. और उन्होंने एक उद्देश्य के लिए वो आए और अपना लहू क्रूस पर बहाकर हमारे लिए वो उद्देश्य पूरा किया। We have all sinned and we have gone away from God. हमने सब ने पाप किया और परमेश्वर के से दूर हो गए हैं। And the wages of sin is death. और पाप का दंड मृत्यु है। The Word of God says, He who knew no sin became a sin for us. और वचन कहता है कि जो पाप नहीं था वो हमारे लिए पाप ठहराया गया। When John the Baptist seen Christ, when John the Baptist seen Christ coming, और जब यूहन्ना जो बपतिस्मा देता है वो उन्होंने जब प्रभु यीशु को आते हुए देखा, he said something like this. उन्होंने ऐसा कहा, He said, "This is the Lamb of God who takes away the sins of the whole world." ये परमेश्वर का मेमना है जो सारे संसार के पाप को उठा लेता In है। the Old Testament time, they used to kill a lot of animals and this and that. But here was the Lamb of God sent by the Father. The Word became flesh for us for a purpose to die on the cross. हम देखते हैं कि पुराने करार में बकरियों को और जानवरों को बलिदान देते थे। यहाँ पर लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर वो बलिदान ठहराया। He died for our sins वो हमारे पापों के लिए मरा to bring forgiveness in this world. ताकि
लोग क्षमा पाए, to reconcile us together with the Father, ताकि हमारा पिता परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो to bring peace and joy in our hearts. और शांति और आनंद हमारे दिलों में लाने के लिए। All we have to do is call upon His name and believe, yes, Lord, I am a sinner. और सिर्फ हमें ये कहना है कि हाँ प्रभु यीशु, मेरे दिल में आना, मेरे जीवन में आना। I believe that you are the one who was supposed to come, the Messiah. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप ही मसीहा हैं जो इस संसार में आने वाले थे। I believe you came for me, you died on the cross for me, you were buried and you rose again from the dead. और आप मेरे लिए आए थे और क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और जी उठे हैं मेरे लिए। And what a wonderful Christmas we are going to have. और कितना अद्भुत हम इस क्रिसमस को मना सकते हैं When we invite our Lord Jesus in our hearts. जब हम प्रभु यीशु को हमारे दिलों में स्वागत करते हैं। And today, when you invite our Lord Jesus Christ in your heart, जब आप प्रभु यीशु को अपने दिलों में स्वागत करते हैं, you become His temple. आप उसके मंदिर बन जाते God हैं। wants to dwell in you. परमेश्वर आपके अंदर निवास करना चाहता है। He says, I'm knocking, come, I need you. और वो कहता है कि मैं खटखटा रहा हूँ, आ, You are my child. मुझे आपकी जरूरत है, आप मेरे पुत्र बच्चे हैं। I died for your goodness. मैं आपके भलाई के लिए मरा। And you know, it's through Christmas when we invite Jesus in our hearts. ये सच्चा क्रिसमस है जब हम प्रभु यीशु को हमारे दिलों में आमंत्रित करते हैं। Jesus Christ never came to make another religion. प्रभु यीशु दूसरा धर्म करने नहीं आया। Religions are all fighting among themselves. और धर्म जो है एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। But Christ came to give us peace. लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया The हमें शांति देने The के लिए, forgiveness of sins. हमारे पापों की क्षमा के To लिए, reconcile each one of us to the Father. और ताकि हम हमारे पिता के साथ मेल मिलाप करें। I want to end my message here. मैं इस वचन को खत्म करता हूँ। And I want to challenge every one of you. मैं सबको चुनौती देता हूँ। Jesus is love. प्रभु यीशु प्रेम है। He says, I am the way, the truth and the life. No one goes to the Father except through me. और प्रभु यीशु कहता है, मैं ही जीवन हूँ, मार्ग हूँ, सत्य हूँ, पिता के पास कोई नहीं जा सकते सिवाय मेरे। The word of God says there is no other mediator between God and man except the man Christ Jesus. और वचन कहता है कि कोई भी मध्यस्थी करने वाला नहीं है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, सिर्फ वो मनुष्य प्रभु यीशु। Even when Jesus was there on this earth, और जब प्रभु यीशु इस धरती पर था, the many I ams we know in the Bible. और बहुत सारे जो मैं हूँ ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा है। Jesus said, I am the good shepherd. Not only a shepherd, but a good shepherd. और वचन में लिखा है कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ, सिर्फ चरवाहा नहीं, अच्छा चरवाहा हूँ। Says, I am the light of the world. और मैं संसार का रोशनी हूँ। I am the resurrection and the life. और मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। I have believed our Lord Jesus Christ. Yes, He is the true God. और मैंने विश्वास किया है प्रभु यीशु मसीह पर, वो सच्चा परमेश्वर है। And I know that I have eternal life through Him. और मुझे मालूम है कि अनंत काल जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। And today, eternal life, that joy and peace can be yours also. और आज वो अनंत जीवन और आनंद आपका भी हो सकता है। I want to, even as I finish my message, जैसे मैंने संदेश खत्म करता हूँ, I want to wish you a Merry Christmas. मैं आपको मैरी क्रिसमस अभिनंदन करती हूँ। May all go well with you. और सब कुछ आपके जीवन में भला हो। And may the grace of our Lord Jesus Christ always be with you. और प्रभु यीशु का अनुग्रह तुम्हारे साथ रहे। Amen. आमीन।
Oh
झुके आसमान और महिमा गाए सभी यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी हम गाए होसाना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए होसाना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया हम गाए होसाना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए होसाना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा तू है प्रभु हमारा खुदा तू है प्रभु हमारा आप सभी का अभिवादन। एक बार फिर से मैं आज की सुबह हमारे पिता परमेश्वर की उपस्थिति में उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन सर्विस में। और जैसा हम सब जानते हैं कि पूरा संसार, पूरा विश्व इस वक्त क्रिसमस को सेलिब्रेशन कर रहा है, नाताल का उत्सव मना रहा है। सो मैं आपके साथ कुछ बातों को बांटना चाहता हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं कुछ सिंपल बातों को आपके साथ बांटूँगा। और वो बातें हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में से है। हम सब क्रिसमस मनाते हैं, हम लाइटनिंग करते हैं, हम एंजॉय करते हैं, हम पार्टी मनाते हैं, हम गिफ्ट शेयरिंग करते हैं,
सब कुछ अच्छा है, कुछ भी गलत नहीं है और मैं उन किसी भी बातों के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन सबसे बेहतर या सबसे अच्छा अगर क्रिसमस को हम कहें तो बाइबल हमें बताती है कि सच्चा क्रिसमस का महत्व क्या है। ओके, केवल हमें लाइटनिंग नहीं करनी है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन की ज्योति है। आमीन। और वो एक समय के लिए नहीं, वो अनंत काल के लिए हमारे लिए ज्योति है। हालेलुया। सो मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि अगर आप लाइटिंग करते हो, पार्टी करते हो, गिफ्ट शेयरिंग करते हो, मेरा कोई ऐतराज नहीं है, हम सब एंजॉय करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन रियल क्रिसमस का मीनिंग यह है कि यीशु मसीह इस जगत की ज्योति है, आत्मिक ज्योति है, हमारे जीवन की ज्योति है। आमीन। और परमेश्वर ने सबसे बड़ा तोहफा या सबसे बड़ी भेंट जो मानव जाति के लिए दिया है वो उसका पुत्र यीशु मसीह है। आमीन। सो परमेश्वर ने अपना गिफ्ट हमारे साथ शेयर किया है। अब हमारी बारी है कि हम अपना जीवन, अपना हृदय उसको दे दें। आमीन। सो ओके, सो हम देखेंगे आज का जो मेरा शीर्षक है या विषय है वो है कि यीशु मसीह कौन है। ओके, बाइबल में बहुत सारी बातें यीशु मसीह के बारे में लिखी गई है। बहुत सारी बातें हम हमारे आसपास सुनते हैं। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के बारे में अलग अलग बातें बताते हैं। कुछ लोग अच्छी बातें बताते हैं, कुछ लोग गलत बातें बताते हैं, लेकिन बाइबल हमें यीशु मसीह कौन है उसके बारे में सिखाती है और बताती है। आमीन। सो अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार का पहला अध्याय पहला वचन पढ़े तो लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आमीन। अगर उत्पत्ति का पहला अध्याय का पहला वचन अगर हम पढ़ते हैं, जो बाइबल की पहली पुस्तक है, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1। ओके, उत्पत्ति का पहला अध्याय पहला वचन में इस प्रकार लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उसके पहले कि आकाश सृजा गया, इसके पहले कि पृथ्वी निर्माण हुई, पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु, पेड़, पंछी, पौधे और यहाँ तक मानव जाति का जो रचना हुआ, उससे पहले परमेश्वर था। आमीन। सो कलीसिया, यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। यीशु मसीह के द्वारा इस सारे संसार का निर्माण हुआ है। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार का 1:3 पढ़ेंगे तो लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा सृजा गया है, उसके बगैर कुछ भी नहीं बना। आमीन। सो मुझे आज की सुबह आप सभी से ये कहना है मेरे मित्रों कि यीशु मसीह वो खुदा है, वो परमेश्वर है, जो अलौकिक है, जो अद्भुत है, जो सारी बातों की शुरुआत है, उसकी कोई शुरुआत नहीं है। वही इटर्नल वर्ड, वही अनंत काल का वचन इस पृथ्वी पर मनुष्य का देह लेकर प्रकट हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं और मानते हैं कि परमेश्वर मनुष्य नहीं बन सकता। तो मेरा ये कहना है कि जब मिट्टी से वो आदम को बना सकता है, जब कुछ नहीं था उससे सब कुछ निर्माण कर सकता है, तो वो खुद मनुष्य बनकर क्यों कर नहीं आ सकता। ओके, सो यीशु मसीह परमेश्वर है। ओके, और यीशु मसीह ने क्यों जन्म लिया, उसका क्या लक्ष्य था, क्या ध्येय था, क्या मकसद था इस पृथ्वी पर आने का। पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी है, लेकिन मैं आपके साथ कुछ 1 या 2 बातें बांटूंगा समय की वजह से। ओके, सो हम आएंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 और वचन 67 से 2-3 वचन हम आगे जाएंगे, जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पिता जकरिया के बारे में बाइबल जिक्र करती है। जकरिया एक याजक था, हम सब जानते हैं, इसलिए वो मंदिर में धूप जलाने जाता है और वहां पे वो स्वर्गदूत का दर्शन पाता है। ओके, और जब स्वर्गदूत उसके खुद के बेटे के बारे में यानी यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जन्म के बारे में बहुत सारी बातें कहता है, तो वो उस पर विश्वास नहीं करता है और नतीजा उसका मुंह बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है 67 में मैं पढ़ूंगा, उसका पिता जकरिया यानी यूहन्ना बपतिस्मा दाता का पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा। ये पहली भविष्यवाणी है जो हम देख सकते हैं नया नियम में। मलाकी की पुस्तक बंद होने पर और ये मत्ती की पुस्तक शुरू होने के बीच में 400 वर्ष तक कोई दर्शन नहीं था, कोई भविष्यवक्ता नहीं था, कोई भविष्यवाणी नहीं थी। हालांकि हम देखते हैं कि जिब्राइल दर्शन देता है, जिब्राइल परमेश्वर का संदेश लेके आता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता की जो माँ एलीशिबा है वो परमेश्वर की स्तुति करती है। यीशु मसीह को जन्म देने वाली मरियम प्रभु की स्तुति करती है, क्योंकि वो जिब्राइल उससे बातें करता है कि वो पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और वो अपने लोगों को उसके पापों से छुड़ाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जकरिया के बारे में, ये पहली भविष्यवाणी है और वो भविष्यवाणी में 2 बातें हम आज के सुबह में गौर करेंगे, जो यीशु मसीह के जन्म का मकसद हमें बताता है। यीशु मसीह कौन है वो हमें दर्शाता है। आमीन। सो आए वचन 68 से आगे जाऊंगा मैं।
68 के आगे, प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है। ये पहला पॉइंट है कि वो हमारा छुटकारा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। यीशु मसीह कौन है? वो हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे 8वें वचन में लिखा है कि जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए, जो जगत की उत्पत्ति से उनके लिए वध किया गया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसके पहले कि आदम सिरजा गया, इसके पहले कि पेड़, पंछी, पौधे, जानवर, समुद्र, पहाड़, आकाश, पृथ्वी की रचना हुई, परमेश्वर ने अपने पुत्र में एक योजना बनाई थी कि मानव जाति का उद्धारकर्ता बनकर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएगा और वो परमेश्वर के मेमने के रूप में परमेश्वर के सामने मनुष्य के पापों के प्रायश्चित के लिए, मनुष्य के पापों का दंड चुकाने के लिए, मनुष्य के बदले में, हमारे बदले में वो बलिदान हुआ है और उसके बहाए हुए लहू से, उसके बहाए हुए पवित्र लहू से आपका मेरा उद्धार हुआ है। आमीन। सो पहला पॉइंट है कि यीशु मसीह कौन है? वो हमारा छुटकारा देने वाला प्रभु है। जो कुछ भी आदम ने पाप से खोया, पाप करके खोया, आज्ञा उल्लंघन करके खोया था, गुमाया था, सब कुछ यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा वापस प्राप्त कर लिया है। आमीन। ये बहुत बड़ा गुड न्यूज है। यही सुसमाचार है, क्योंकि अंधकार मिट चुका है, ज्योति ने अपना राज्य धारण किया है या ज्योति प्रकट हुई है। जो कोई अंधकार में बैठे थे उन्होंने ज्योति पाई है। हम सब अंधकार में थे, आज भी बहुत सारे लोग अंधकार में है। यीशु मसीह वो ज्योति है। सच्चा क्रिसमस का ज्योति यीशु मसीह है। आमीन। जो अनंत काल की ज्योति है। तो पहला पॉइंट है कि वो धन्य प्रभु है या धन्य परमेश्वर है, क्योंकि वो हमें मिलने के लिए इस पृथ्वी पर आया, वो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया और हमें छुटकारा देने के लिए उसने दाम चुकाया। छुटकारा देना या इंग्लिश वर्ड है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन के लिए हमें पे करना पड़ता है। यीशु मसीह ने अपना जीवन आपके लिए और मेरे लिए, इस संसार के संपूर्ण मानव जाति के लिए दाम के रूप में चुकाया है, अपना पवित्र लहू चुकाया है और उसके द्वारा हमें छुटकारा दिया है। आमीन। सो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम जाएंगे और 69वां वचन 69, और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए उद्धार का सिंह निकाला। यहाँ पे लिखा है उद्धार का सिंह। यीशु मसीह हमारा उद्धार का सिंह है। इंग्लिश में लिखा है हॉर्न ऑफ सैल्वेशन। यीशु मसीह क्या है? हमारा उद्धार का सिंह है। बाइबल में सिंह को सामर्थ का प्रतीक माना गया है। आमीन। यीशु मसीह हमें उद्धार देने वाला हमारा उद्धार करता है। ओके। सो मैं कहूंगा कि यीशु मसीह मेरा धर्म नहीं है, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, जिसने मेरे लिए अपने आप को दिया और उसने उसके बदले में, जब मैंने उस पर विश्वास किया, उसने मुझे उद्धार दिया है। आमीन। क्योंकि उद्धार परमेश्वर ने मुफ्त में रखा है। मानव जाति उद्धार पाने के लिए आज भी परमेश्वर मौजूद है। अब यीशु मसीह ने उद्धार के लिए दाम चुकाया, इसका मतलब यह नहीं है कि सब बच जाएंगे, सबका उद्धार हो जाएगा। इसके लिए एक शर्त लागू है और वो शर्त यह है कि जब हम यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान को स्वीकार करेंगे या उसके बलिदान को हमारे जीवन में विश्वास से ग्रहण करेंगे, तब हमें उद्धार मिलेगा। इसका मतलब यह है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने अपना कार्य कर दिया है। अब हमारी बारी है कि हम यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करें, उसके नाम पे विश्वास करें और उस उद्धार को पाए, क्योंकि वो हमारा उद्धार देने वाला सिंह है, द हॉर्न ऑफ आवर सैल्वेशन। ओके। वो हमें उद्धार देने के लिए सामर्थ्य रूप में आया। उसने हमारे लिए पाप से लड़ाई की, शैतान से लड़ाई की, अंधकार से लड़ाई की और वो मरकर, बाइबल कहती है तीसरे दिन वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुर्दों से जी उठा है। आमीन। इसीलिए आज वो आपका और मेरा उद्धार करने के लिए सामर्थी है, विश्वास योग्य है और सक्षम है। आमीन। हालेलुया। ओके। अगर आप मैं इसके पहले तीसरा पॉइंट बताऊंगा, इसके पहले मैं और एक बात बताना चाहता हूं। अगर आप प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 12 में पढ़ेंगे तो वहां पतरस इस प्रकार कहता है कि आसमान के नीचे और मनुष्य के बीच में ऐसा कोई नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, और वो नाम यीशु मसीह का नाम है। उसके नाम का अर्थ है छुड़ाने वाला और बचाने वाला, मसीहा, क्रिस्त, जिसका अभिषेक किया है परमेश्वर ने कुछ खास मकसद से, कुछ खास कारण से। और वो खास कारण और मकसद यह था कि मानव जाति ने जो पाप किया था आदम के रूप में, सब कोई पाप में गिरे थे, सब परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए थे। क्रिसमस का वो समय, यीशु मसीह का वो जन्म इस पृथ्वी पर, बेथलेहम में उसका जन्म, यीशु मसीह का इजराइल में प्रकट होना संपूर्ण मानव जाति के लिए उद्धार है। उद्धार बाइबल कहती है, मैंने पहले भी शायद कहा था, आज भी कहना चाहूंगा, यूहन्ना 4:33 में लिखा है उद्धार तो यहूदियों में से है।
केवल यहूदियों के लिए नहीं है। यानी कोई भी राष्ट्र, कोई भी कुल, कोई भी भाषा, कोई भी व्यक्ति जब यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान पर, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करता है या उसे ग्रहण करता है, उसका उद्धार होता है। आमीन। सबका उद्धार नहीं होगा। परमेश्वर ने अपना काम किया है। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझे अपना काम करना है। हमें केवल विश्वास से यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार करना है, क्योंकि वो आपके और मेरे लिए पाप का दंड चुकाया, आपके और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है। आमीन। ओके, तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे, 71वां वचन, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है। आमीन। कलीसिया मेरे प्रियो, तीसरा पॉइंट है कि यीशु मसीह कौन है? तो हमारे बैरियों से और जो हमारे शत्रु से, उसे लड़ने वाला प्रभु है। ओके, जिसने हमारे लिए पाप से लड़ाई की, मृत्यु से लड़ाई की, शैतान से लड़ाई की, अंधकार से लड़ाई की। बाइबल कहती है शैतान जो है वो गरजने वाले सिंह के समान है। शैतान जो है वो एक चोर की नाई आता है, वो आकर हमारे प्राणों को, हमारी आत्मा को चुराने वाला है, लेकिन यीशु मसीह हमारा रक्षक है। आमीन। तो ये तीसरा पॉइंट है कि यीशु मसीह हमारा बचाने वाला, हमारा रक्षा करने वाला प्रभु है, जो हमारे और से, शैतान से, पाप से, बुराई से, अंधकार से लड़ा और लड़कर हमें विजय दिया है। इससे रोमियो 8 में प्रेरित पौलुस कहता है हम यीशु मसीह में विजेता से बढ़कर है। आमीन। आज हमारा स्थान यीशु मसीह में विजेता से बढ़कर है। क्रूस पर यीशु ने लड़ाई की पाप से, नफरत से, बुराई से, अंधकार से, शैतान से, और बदले में जो विजय मिला, जो उद्धार मिला, जो अनंतकालिक जीवन मिला, जो परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की क्षमा, परमेश्वर की दया, वो उसने हमें दिया है। ये सच्चा क्रिसमस का अर्थ है। केवल पार्टी करना क्रिसमस नहीं है। ओके, परमेश्वर ने अपना सबसे बेस्ट गिफ्ट आपको और मुझे दिया है यीशु मसीह के रूप में। यीशु मसीह हमारे जीवन की ज्योति है। यीशु मसीह हमारे बदले में क्रूस पर था और उसने हमें क्षमा दिया है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं बस आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा और उसके बाद मैं खत्म करूंगा। पिता यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, इस क्रिसमस सीजन में प्रभु तू उनकी आंखें खोल, उनके हृदय को खोल, ताकि वो तेरे पुत्र को ग्रहण करे और उनका उद्धार हो। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन।